my channel. Last video we have learned golden rules of accounting. Today we will apply those rules in practice and see how to pass journal entry. This is the definition of journal entry. This is very basic definition. I would recommend you to follow your book. This is just to understand. Okay, ये बस आपको समझाने के लिए ये उतना basic है बस. What is journal? Journal is the book of original entry. Whenever a transaction happens, we first record it in the journal and in the form of debit and credit. So why we call journal is the book of original entry? Because the transaction first written here from source document. So what is source document? Source document are invoice, cash memo, voucher. These are source document, making it the original point of recording. Journal is a book where transactions are recorded in chronological order, means date wise, using double entry system, debit and credit. आप पहले ऐसे समझिए, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब परचेज़ किए हैं हम लोग, तो उसका कोई एविडेंस तो होगा, जैसे बिल, रिसीट, वाउचर, ये सब. रिसीट हुआ, वाउचर हुआ, बिल हुआ. द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन जर्नल फर्स्ट with debit and credit entry. Later entries are transferred to ledger book and the ledger book are secondary entry. Okay, I will post the video about ledger. First we will see the journal. रीज़न क्या है डबल एंट्री सिस्टम का? हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करके करते हैं. हर एंट्री जो होता है अकाउंट्स में, वो अकाउंटिंग में वो डबल टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट होता है. जैसे लेट अस सी द स्टेप्स टू पास जर्नल एंट्री. फर्स्ट, आइडेंटिफाई विच अकाउंट आर इन्वॉल्व. ओके, आइडेंटिफाई द अकाउंट. दिस इज द स्टेप 1. फ्रॉम एवरी ट्रांजैक्शन फाइंड आउट द अकाउंट दैट आर अफेक्टेड. फॉर एग्जाम्पल, every business transaction always involves at least 2 accounts, debit and credit. Okay, for example, paid rent rupees 2000 in cash. Ask yourself which 2 things are happening here. First, money, cash. Okay, then money is going out from business, and second one is rent. This is expense. Okay, is being paid. Yeah, expense has been incurred. Okay, so 2 accounts are involved. First one is rent. I hope you can see because my camera is not. First one is rent. The second one is cash. Rent account, debit 2000 to cash account. See, both affected both the side, and rent account debit to cash account total. So every transaction has to affect debit and credit. Okay, this is the how you can do this. Okay? Next point is decide which account is to be debit and which account is to be credit by applying golden rule. Now I have explained you here how to use which account will go on debit and credit. Money is your asset, is real account. Debit was comes in, credit was go out. मैंने जा रहा है यहाँ से बिजनेस में, तो यहाँ क्रेडिट कर रहे हैं. और रेंट क्या है? रेंट नॉमिनल अकाउंट में आता है. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. यहाँ रेंट एक्सपेंस हो रहा है तो रेंट अकाउंट डेबिट, ये एक्सपेंस हो गया. ठीक है, सो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 आर फिनिश्ड. स्टेप 3, राइट एंट्री इन प्रॉपर फॉर्मेट. आई विल शो यू द फॉर्मेट. फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज नरेशन. Narration is must. It is a short explanation of transaction. Okay, so these are entries. Let me show you the entry first. These all are entry we will do pass in this video. Okay, this business started business with cash, purchase good for cash, paid rent, sold goods for cash.
sold gold on credit to Rahul, received cash from Rahul. These entry will pass in this video. This is the format of journal entry. Date, the 5 column you have to make. पहला वाला डेट रहेगा, दूसरा वाला पर्टिकुलर, एंड लेजर फॉल्यू, डेबिट, क्रेडिट. लेजर फॉल्यू अभी आप पेज नंबर समझ लो, ये पेज नंबर है. लेजर फॉल्यू हम लोग लेजर में जाते हैं और जर्नल का ट्रांजैक्शन देखते हैं. फॉर एग्जांपल ये 1 है, यहाँ पे पहला ट्रांजैक्शन हुआ है, लेजर में जाके पोस्ट कर देते हैं, वहाँ भी 1 लिखते हैं. इसको अभी आप पेज नंबर के एग्जाम्पल समझ लो. ये उतना काम नहीं आता है, फॉर्मेट का पार्ट है और ये आपको बनाना है. ठीक है. तो व्हाट वाज फर्स्ट ट्रांजैक्शन? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. ओके, started business with cash rupees 50,000. Identify which account are affected here. Cash account, debit, capital account. How? Cash is our real account. So cash आ रहा है, debit what comes in? Cash account, debit to capital account. Capital क्या है? Remember capital always पर्सनल अकाउंट. कैपिटल क्या है? पर्सनल अकाउंट है, इसलिए कैपिटल क्रेडिट होता है. वो क्रेडिट इज़ द गिवर. डेबिट पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट इज़ द रिसीवर, क्रेडिट इज़ द गिवर. तो ओनर है वो गिवर है, कैपिटल वो दे रहा है बिजनेस में, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट वो कैपिटल अकाउंट. व्हाट वाज द अमाउंट? 50,000. सॉरी, आई एम नॉट इन दिस. यू हैव टू राइट नरेशन. इफ़ यू विल नॉट, अगर आप नरेशन नहीं लिखेंगे तो आपका मार्क्स कट सकता है, तो नरेशन मस्ट है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा. बहुत छोटा सा होता है, इससे समझ में आता है कि आपको एक बार पढ़ के समझ में आ जाएगा कि कैसा ट्रांजेक्शन क्या आप इसके ऊपर स्टार्ट करेंगे. स्टार्टेड कैश. ये हो गया फर्स्ट एंट्री पास. आई होप आपको समझ में आया होगा और मैं सही से समझा पाऊँगी. और अब देखते हैं दूसरा एंट्री, परचेज गुड फॉर कैश. सो थिंक आपको पहले सोचना होगा परचेज़ क्या है. परचेज़ एक्सपेंस है, तो परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. परचेज़ नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑन लॉसेस. ठीक है, नॉमिनल अकाउंट. तो परचेज़ डेट आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा. यहाँ 1 जैन हम लिख दे रहे, सॉरी जैन 1 जनवरी, और ये आ गया 2. ठीक है, परचेज़ अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट. परचेज गुड फॉर कैश. हम लोग परचेज किए थे गुड फॉर कैश. कैश से हम लोग गुड्स खरीदे थे. फॉर एग्जाम्पल 20,000 का देखो. ठीक है, परचेज है एक्सपेंस. और कैश क्या है? कैश एसेट है, वो रियल अकाउंट में जाता है. यहाँ पे कैश आया था तो डेबिट, डेबिट वोट कम्स इन, और यहाँ से कैश जा रहा है तो क्रेडिट वोट गोज आउट. तो कैश जा रहा है बिकॉज एक्सपेंस हो रहा है परचेज. परचेज रेंट. रेंट क्या है? एक्सपेंस है. रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. 1 लाख 10,000 1 लाख ज़्यादा होगी. ठीक है, फोर्थ वन इज सोल्ड गुड फॉर कैश. गुड सोल्ड किए, गुड्स कैश आया और हम लोग के बिजनेस से क्या किया? गुड्स किया. तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. यहाँ पे अगर हम लोग मशीन को सेल करते हैं तो मशीन हमारा एसेट है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. नहीं, मशीन को सेल्स करते तो मशीन हमारा एसेट है, एसेट जा रहा है. हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट मशीन अकाउंट हो जाता है, क्योंकि मशीन क्या है? रियल अकाउंट है, और कैश भी रियल अकाउंट है. दोनों रियल अकाउंट से डील करता है. कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. ओके, लेकिन यहाँ तो गुड्स सेल हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. गुड्स हम लोग के बिजनेस से जा रहा है, गुड्स भी रियल अकाउंट से डील करते हैं. ठीक है,
और कैश। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राहुल। ये वाला एंट्री इसमें क्या होगा, क्रेडिट में हम लोग बेच रहे हैं, तो हम लोग के अकाउंट में मनी नहीं आ रहा है, क्रेडिट में बेच रहे हैं राहुल को, तो ये पर्सनल अकाउंट से डील करता है। राहुल इज़ दी रिसीवर, ओके, बोरोवर। तो पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट इज़ द रिसीवर, क्रेडिट इज़ द गिवर। तो राहुल को हम लोग गुड्स बेच रहे हैं, तो राहुल क्या हुआ, डेबिट में जाएगा। राहुल इज़ पर्सनल अकाउंट, डेबिट इज़ द रिसीवर, राहुल अकाउंट डेबिट टू। बिजनेस से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, गुड्स क्या डील करता है, रियल अकाउंट्स में जाता है। गुड्स डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। यहाँ आपको एक बेनिफिट हो जाता है नरेशन में लिखने का। आप यहाँ लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू राहुल, आप लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा हाँ क्रेडिट सेल है, क्योंकि हम लोग क्रेडिट सेल तभी होता है जब हम कोई पर्सन का नाम लेते हैं, नहीं तो अगर कैश आया कैश में ही डील करते हैं, पर्सन का नाम नहीं लिखते। ठीक है, इस नरेशन इज इम्पोर्टेंट। चुकी है इसमें 10,000। लास्ट वन इज रिसीव कैश फ्रॉम राहुल। कैश, राहुल कैश दे रहा है, तो कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश एसेट है, डेबिट वॉट कम्स इन। राहुल क्या है, गिवर। राहुल पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उस टाइम राहुल रिसीव कर रहा था, अब राहुल दे रहा है, तो राहुल को क्रेडिट मिलता है। 10,000 का लिया था, 10,000 को